بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کے تعلق سے کچھ مسائل اور کچھ فضائل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز یعنی کہ صلاۃ التسبیح، یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ ابو داؤد شریف میں بھی آپ کو روایت مل جائے گی، ابن ماجہ میں بھی مل جائے گی، اور ترمذی شریف میں بھی آپ کو روایت مل جائے گی۔ کتابیں کھول کے دیکھ لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک خیر کا کام نہ سکھا دوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی نماز بتائی اور بتایا کہ اس کو پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے جان بوجھ کے کیے گئے یا سہون ہوئے یعنی کہ انجانے پن میں ہوئے کسی بھی طریقے سے ہوئے ہو، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اس کو ہر روز ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو ساری زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ اس نماز کی اہمیت کتنی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ اگر کہیں بھی آپ کو وقت نہیں ملتا، کسی بھی طریقے سے وقت نہیں ملتا، اور آپ اس کو روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم پوری لائف میں، پوری زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا۔ اب اس کی اہمیت آپ خود سمجھ جائیے کہ یہ کتنی بڑی اور کتنی افضل نماز ہے، لیکن ہے نفل نماز۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ نیت باندھے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ کو زبان سے نیت بتائی ہے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تو بس آپ کی نیت ہو گئی رخ قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر زبان سے کر لیں گے تو بہتر ہے، جیسے کہ اقرار باللسانی، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا۔ تو اگر دل سے تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کر لیا جائے تو افضل ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے جیسے ہی نیت باندھی، ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورت کے بعد، یعنی کہ جو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی ہے، اس کے بعد 15 مرتبہ قیام میں ہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، افضل اور بہتر تو صلاۃ التسبیح میں 3 مرتبہ یہ ہے، سبحان ربی العظیم پڑھے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ 10 مرتبہ رکوع میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، ایسے آپ کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر 10 مرتبہ آپ کو یہاں پر پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 10 مرتبہ پڑھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جو ہے سجدے میں گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد پھر سے آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، یعنی کہ تیسرا کلمہ جو میں نے بتایا آپ کو، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے
जलसे में आ जाएंगे, यानी कि बैठ जाएंगे। फिर आपको 10 मरतबा यहाँ पर पढ़ना है बैठ के। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर दूसरा सजदा करना है। दूसरा सजदे में फिर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर जो है आपको 10 मरतबा सजदे की हालत में तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप जो है सर उठाएंगे सजदे से, अल्लाह अकबर कहेंगे, सीधा खड़ा नहीं होंगे बल्कि यहीं पर बैठे बैठे 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद फिर से 15 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये चारों रकत आप पूरी कर लेंगे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबी है, उनसे ये साबित है कि उन्होंने इसको इस तरीके से पढ़ा कि आपने पहले सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा पढ़ा तीसरा कलमा, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 15 मरतबा पढ़ा। फिर आपने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत पढ़ी। तो कितना हो गया? 15 मरतबा हो गया शुरू में। सूरत पढ़ने के बाद फिर से आपने 10 मरतबा पढ़ा। जो 10 मरतबा पढ़ा तो यहाँ पर पहले तो क़याम में 15 मरतबा था, लेकिन अब कितना हो गया? 25 मरतबा। तो ये आपको 25 मरतबा क़याम में पढ़ना है। फिर जो है 10 मरतबा रुकू में पढ़ना है। 10 मरतबा रुकू से सर उठाने के बाद पढ़ना है। फिर जो है 10 मरतबा पहले सजदे में पढ़ना है, 10 मरतबा जलसे में पढ़ना है, 10 मरतबा दूसरे सजदे में पढ़ना है। अब ये जो दूसरे सजदे में पढ़ा है ना, इसके बाद आपको पहली रकत में या तीसरी रकत में बैठना नहीं है दूसरा सजदा करके, बल्कि खड़ा हो जाना है, क्योंकि जो यहाँ बैठ के पढ़ना था वो सूरत मिलाने के बाद पढ़ लिया गया, और जो सूरत मिलाने के बाद पढ़ना था वो सना के बाद पढ़ लिया गया। तो यहाँ पर अक्सर इसलिए भूल हो जाती है लोगों को कि दूसरा सजदा करके या तो खड़े हो जाते हैं, या फिर जो है ये 10 मरतबा पढ़ने के बाद दूसरा सजदा करके 10 मरतबा पढ़ने के बाद जब बैठते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये भूल हो जाती है कि वो रकत भूल जाते हैं। तो इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने यही अफजल कहा है कि अगर 15 मरतबा शुरू में पढ़ लिया जाए सना से पहले, सना के बाद, और फिर 10 मरतबा सूरत के बाद पढ़ लिया जाए, तो यहाँ बैठने में जो गलती कोताही होती है, अक्सर हो जाती है, भूल जाते हैं, तो यहाँ पर जो है भूलने का खदशा ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीका ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से साबित है। तो ये तो हो गई इसके पढ़ने का तरीका और फजीलत। अब इसके मसाइल समझ लीजिए क्या क्या है। मसला नंबर 1, इस नमाज के लिए कोई सूरत मुकर्रर नहीं है कि कोई वही सूरत पढ़नी है जो इसके लिए कोई ख़ास की गई हो, कोई ख़ास सूरत नहीं है। लेकिन अफजल ये है कि पहली रकत में कम, यानी कि हर रकत में कम अज़ कम 20 आयत पढ़ी जाए, और अगर किसी को याद ना हो ये इतनी आयतें या इतनी सूरतें, तो जो उसके याद है, जितनी याद है उन्हीं से वो इसको अदा कर लें। मसला नंबर 2, इन तस्बीहात को ज़बान से बिल्कुल ना गिने। अगर गिनेंगे तो नमाज टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। बेहतर तरीका यह है कि आपने नियत बांध रखी है और यहाँ पर आप पढ़ते जा रहे हैं, सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर। यूँ उंगली कर ले, सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरीके से ये उंगलियां आपकी हरकत करती रहे, आप ज़बान से ना गिने। ज़बान से गिनती आपकी नमाज टूट जाएगी। तो 2 मसले हो गए। मसला नंबर 3, अगर किसी जगह पढ़ना भूल जाए, जैसे कि मैंने बताया है कि भूल जाते हैं, अगर किसी जगह पढ़ना भूल जाए, मिसाल के तौर पे क़याम में पढ़ना था 10 मरतबा सूरत के बाद, सूरत मिलाने के बाद, सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा पढ़ना था, लेकिन सूरत पढ़ते ही सीधे रुकू में चले गए, रुकू में चले गए, तो अब आप जो है रुकू में 20 मरतबा पढ़ लीजिए। 20 मरतबा आप रुकू में तो पढ़ सकते हैं। अगर रुकू में नहीं पढ़ा तो फिर आपको जो है कोमा में भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है। कोमा में नहीं पढ़ना है, कोमा और जलसे में नहीं पढ़ना है, या तो आपको इयादा करना है रुकू में या सजदे में। अगर आप रुकू और सजदे में इयादा नहीं कर पाए तो फिर जो आप क़याम करेंगे तो क़याम में फिर शुरू में 25 मरतबा पढ़ लीजिए और 10 मरतबा सूरत के बाद पढ़ लीजिए, या फिर जो है 15 मरतबा सूरत के बाद पढ़ लीजिए और 20 मरतबा 15 मरतबा
सूरत से पहले पढ़ लीजिए और 20 मरतबा सूरत के बाद पढ़ लीजिए। इस तरीके से कुल मिला के एक रकत में 75 मरतबा पढ़ना होता है। तो एक मसला ये हो गया, और एक मसला ये कि ये नमाज हर वक्त हो सकती है, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है सिवाय उस वक्त के, यानी कि जिस वक्त में नवाफिल नमाजें पढ़ना मकरूह है, ममनू है, उन वक्तों में भी ये नमाज ना पढ़ी जाए। इस नमाज को पढ़ने का अफजल जो वक्त है वो ज़वाल के बाद है और ज़ोहर से पहले का है। अलबत्ता अगर किसी को उस वक्त में वक्त नहीं मिलता इस नमाज को पढ़ने का, तो फिर वो किसी भी वक्त में ज़वाल के वक्त से मकरूह वक्त के अलावा फिर वो किसी भी वक्त में पढ़ सकता है, जैसे कि इशराक में, चाश्त में, या फिर जो है ज़ोहर के बाद, या फिर जो है मगरिब के बाद, या ईशा के बाद, या तहज्जुद में, फिर कभी भी पढ़ सकता है क्योंकि इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। और फिर एक मसला ये भी है कि बेहतर यह है कि इस नमाज को ज़वाल के बाद पढ़ जाए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और बाज़ रिवायत में ये भी आता है, एक मसला ये भी सुन लीजिए कि बाज़ रिवायतों में ये भी आता है सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर के बाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अगर ये भी पढ़ लेंगे तो भी आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अलबत्ता अगर आखिरी रकत के 75वीं मरतबा का जो आखिरी कलमा होगा उसमें अगर आप आखिरी बार में ये मिला ले वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो भी आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, एक मसला ये कि दूसरी और चौथी रकत में अत्तहियात से पहले इन कलिमात को 10 मरतबा पढ़ने और रुकू व सजदे से पहले तस्बीह यानी सुभान रब्बियल अज़ीम और सुभान रब्बियल आला पढ़नी है। उसके बाद फिर ये कलिमात पढ़ने हैं। समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? रुकू और सजदे की तस्बीह पहले पढ़नी है और ये कलिमा यानी कि तीसरा कलिमा बाद में पढ़ना होता है। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा तरीका इस नमाज को पढ़ने का भी मैं बता चुका हूँ, जो कि मैं भी शुरू में बता चुका हूँ। तो इसका ये मुकम्मल तरीका है जो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर किसी वजह से सजदा सहू आ जाए, सजदा सहू भी सुन लीजिए, सजदा सहू आता है वाजिब को या तो भूल से तर्क हो जाए, या वाजिब को अदा करने में देर हो जाए, या फिर जो है फ़र्ज को अदा करने में देर हो जाए। अगर वाजिब छूट गया गलती से तो सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। अगर फ़र्ज को अदा करने में देर हो गई तो सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा। अगर फ़र्ज छूट जाए तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी, दोबारा ही पढ़नी पड़ेगी। और याद रखें, अगर किसी वजह से नवाफिल नमाज टूट जाए और वो आप उसको पढ़ रहे थे तो ये उसका इयादा वाजिब होता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपसे गलती हो गई, नमाज टूट गई और आपने उसको छोड़ दिया, नहीं, आपको फिर उसको मुकम्मल करनी होगी दोबारा शुरू करके। ये तमाम मसाइल है। अगर किसी की कोई तस्बीह रह जाए यानी कि तीसरे कलमे की तस्बीह रह जाए पढ़े बगैर, तो वो सजदा जो सहू करेगा उसमें पढ़ ले। याद रखे, नमाज का वाजिब छूट जाने से, या वाजिब को अदा करने में देर हो जाने से, या फ़र्ज को अदा करने में देर हो जाने से, तब सजदा सहू वाजिब होगा। इसके अलावा और कोई वजह सजदा सहू की नहीं बनती कि वाजिब हो जाए। तस्बीह छूटने से सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता अगर आपकी कहीं तस्बीह छूटी हुई है और आप सजदा सहू का सजदा कर रहे हैं, अगर आप उसमें सजदा सहू वाले सजदे में पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज फिर भी दुरुस्त हो जाएगी। और ये भी जहन नशीन रखे कि आपने तस्बीहात तो पूरी की है, लेकिन आपको वाजिब में कोई इश्काल हो गया, छूट गया, या देर हो गई, या फ़र्ज़ को अदा करने में देर हो गई और सजदा सहू कर रहे हैं, तो सजदा सहू में ये तस्बीह नहीं पढ़ी जाएगी। छूटी हुई तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़ायद नहीं पढ़ी जाएगी कि भाई सजदा सहू हो रहा है तो अब यहाँ पर भी तस्बीह पढ़ी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आप हज़रात की समझ में आ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।